Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Minerals and Power Resources, and under this chapter we have done about the conventional resources of power, and in this we have discussed about firewood and fossil fuel. Under fossil fuel, oil, that is petroleum, then natural gas and coal. We have discussed about all these conventional sources of energy. Conventional sources are those sources which are in use for a very long period of time, and hydel power also comes under this under this conventional source of energy, because conventional source of energy means the source of energy which are in use for a very long time, so it comes under conventional source of energy. But here you must understand that other than hydel power, the all the conventional source of energy are exhaustible, like firewood, then fossil fuel, all are exhaustible and limited, but the hydel power is inexhaustible, and that is the reason many times there is confusion among the students regarding this categorization of hydel power. Many times it is considered that hydel power, people think that hydel power comes under non-conventional source of energy. It's not like that. It is always, you must remember it. Now we are doing the non-conventional source of energy, and under this non-conventional source of energy you must understand those sources of energy comes under non-conventional, which are which have started to be used in recent times, है ना. इधर के टाइम में जिनको यूज़ करना स्टार्ट किया गया है उसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. तो जैसे कि नॉन कन्वेंशनल में जो भी सोर्स ऑफ एनर्जीज आते हैं, दे ऑल आर इनएग्जॉस्टिबल, दे ऑल आर अनलिमिटेड, like they always get replenished. We use them and they are getting replenished instantly, like sunlight. We are using the sunlight and it is replenished, like this wind power. Wind say the power which is generated through wind is also an inexhaustible source of energy. So non-conventional resources are those resources which have started to be used in recent times. They are unlimited and inexhaustible. Okay, so first of all we have started this also about the solar energy. Solar energy is one of the most important non-conventional source of energy. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा सोलर एनर्जी है. वी ऑल नो दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, है ना. एंड दिस this energy of the sun, this heat and light energy of the sun can be tapped from the sun, है ना. And it can be used in solar cells to produce electricity. We use solar cells in order to produce electricity from the light of the sun. So this electricity which is generated by the use of solar cells is called solar energy. And when so many solar cells are joined together, we get solar panels, and these solar panels are used to generate power for the purpose of heating and lighting. Okay, and we see that solar energy is very much useful for or we can say the countries which fall under the tropical region can produce
solar energy in a very large amount, because the tropical region, as you know, is that region of the globe on which the ray of the sun falls straight on any one of the latitudes ऑल ओवर द ईयर, है ना, थ्रू आउट द ईयर किसी न किसी लैटिट्यूड पे बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसी न किसी लैटिट्यूड पे सीधा पड़ता है सन का रे। तो इस ये जो जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, वहाँ पर सन सोलर एनर्जी को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। एबंडेंट सनशाइन होती है वहाँ पे, है ना। सो हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी is also used for solar heaters, then solar cookers are also there, solar dryers are also there, and community lighting और traffic signals के लिए भी हम इसको use कर सकते हैं। जैसे if you pay attention on your surroundings, you will see that in our city also, in Varanasi also, you will find and the railway station solar panels are there. So solar energy is used for lighting purpose, है ना। Likewise there are many government schools as well who are using these solar panels for producing, for generating electricity. So this is nowadays it has become a very important source of energy. So what is the advantage of solar energy? The most important advantage of solar energy is that it is inexhaustible and unlimited. As I told you earlier, there can the light of the sun, the heat of the sun cannot be finished, है ना। So it is inexhaustible. This is the most important advantage of solar energy. And other than this, it is non-polluting. It means that it does not cause any kind of pollution, as we have seen in the case of fossil fuels. We have seen that when they burn, they generate toxic gases like carbon dioxide, sulfur. So this is what we don't have to experience in the case of solar energy. It is non-polluting, it is clean energy, okay. But it has some disadvantages also. Like the first and the most important disadvantage is that it is highly expensive to install this solar panel और solar energy के लिए जो installment होता है, that is very expensive. And this also in this kind of energy we see that so many energy is wasted also. So these are the two disadvantages. But here you must understand that yes, installation is costly, installation is expensive, but once it is installed then there is no problem, है ना। एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर उसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सोलर एनर्जी। एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दैट इज विंड एनर्जी, okay. Wind energy, wind is also a non-conventional source of energy, because nowadays wind is also used for generating of electricity, okay. So windmills is installed for the purpose of generating electricity from wind. We install windmills, ठीक है। windmills इंस्टॉल करते हैं। ये windmill जो है आज के समय में at present we are using this windmill for the purpose of generating electricity, but actually the windmill was in use from since times immemorial. बहुत बहुत पुराने समय से ये जो windmills है वो यूज़ होते थे। किस लिए यूज़ होते थे? They were used for grinding of grains and lifting of water, ठीक है। बहुत पुराने समय से ये इसलिए इसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स में तो रख रहे हैं, बट
पर्पस ये था, ये पुराने समय से यूज़ हो रहा है, स्टिल वी आर कीपिंग इट इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज एट दैट टाइम दिस विंड मिल वॉज नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट वॉज यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग ऑफ वाटर्स ओनली, है ना। सो मॉडर्न टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि विंड मिल्स जो हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. सो इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ रिसेंट टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ कैटेगराइज्ड इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो ये आपने पढ़ा होगा पीछे के क्लासेस में, जो विंड मिल्स होते हैं इस तरह से विंड मिल्स होते हैं, है ना. और जब हवा से ये घूमते हैं तो इनके घूमने से ही ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स हो जाता था, क्योंकि इनके साथ नीचे अटैचमेंट लगा होता था, जिससे कि ग्रेन्स को ये हिल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, उसके साथ नीचे जो अटैचमेंट लगा है वो भी उसके साथ घूम रहा है और ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स हो रहा है. इसी तरह से लिफ्टिंग ऑफ वाटर भी होता था, जैसे ये ऐसे घूमेगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो वो वाटर पानी को उठाएगा, फिर वो इधर आएगा तो पानी गिर जाएगा, फिर नीचे जाएगा पानी, ऐसे ऐसे करके लिफ्टिंग ऑफ वाटर होता था. ये सारी चीज़ें इन पर्पज़ से विंड मिल्स यूज़ होते थे. बट आज के समय में हम लोग विंड मिल जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. बहुत ही हाई स्पीड विंड जब चलता है तो उससे क्या होता है, जो ये विंड मिल है, दिस इज़ विंड मिल, ये रोटेट होता है और इसके रोटेट होने से ये कनेक्टेड होता है एक टरबाइन से. टरबाइन घूमता है, इसके घूमने से टरबाइन घूमता है. बिकॉज ऑफ दिस स्पीड द टरबाइन मूव्स एंड इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना. सो आज के समय में विंड फार्म्स होने लगे हैं, है ना. विंड मिल्स तो ये हो गया. अब विंड फार्म्स से हम क्या मीन करते हैं, दीज आर विंड मिल, दिस इज विंड मिल, है ना. अब हम एक नया टर्म हमारे सामने आ रहा है, दैट इज विंड फार्म. सो व्हाट डू वी मीन बाय विंड फार्म. विंड फार्म का मतलब होता है कि जब बहुत सारे विंड मिल्स को एक साथ कलेक्टिवली हम एक जगह पे लोकेट करते हैं तो उसको हम विंड फार्म कहते हैं, है ना. एक ही जगह पे बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए, जैसे फार्मिंग होती है ना, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो ये हो रहा है विंड फार्म है, वहाँ पे हम विंड मिल्स को इंस्टॉल करते हैं, एक साथ क्लस्टर हो जाता है उनका. और ये कहाँ पर होता है, इट इज़ मोस्टली डन इन कोस्टल रीजन्स, बिकॉज कोस्टल रीजन्स में बहुत तेज़ हवा चलती है. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड, इफ़ यू हैव गॉन टू द coastal areas, you must have experienced the speed of the wind on the coast. बहुत तेज हवा चलती है ना. तो उस that is required, speed of the wind is required, because with the speed of the wind the windmill will move and then the electricity will be generated. So these wind farms are located mostly in coastal areas, and one more region is there where these windmills are installed, that is mountain passes. माउंटेन पासिस में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टीडी विंड्स ब्लो होती है हर समय, मतलब वो रुकता नहीं है. एवरी टाइम, ऑल द टाइम the wind is blowing and the speed is very high. So these are the two places, coastal places and mountain passes, where strong and steady winds blow, and wind farms are located in these areas only. And we see that there are many countries who are producing high amount of electricity through this use of windmill, and these are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain. Okay, so Netherlands, the countries are Netherlands, UK, USA, Spain, Denmark, UK, USA, Germany and Netherlands.
these are the countries which are producing a great amount of wind energy and wind farms. वहाँ पे wind farms हैं, ठीक है. अब now we will see what are the advantages and disadvantages of wind energy. So first of all, we will see that the advantages of wind energy. It's non-polluting. It does not cause any kind of pollution. It is not harmful for the environment. That is the most important advantage. Other than this, we see that this source of energy is inexhaustible. It is unlimited, है ना. विंड एनर्जी जो है वो अनलिमिटेड है. एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो लो. बट हाँ, इंस्टॉल करना कॉस्टली होता है. बट एक बार जब इंस्टॉल, वही बात जो हमने सोलर एनर्जी में देखा था, एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर वो लो प्राइस हो जाती है, लेकिन लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो जाता है. इंस्टॉल करने में खर्च होती है, बट वंस इट इज इंस्टॉल्ड देन it produces low cost electricity. So these are the advantages and some disadvantages also, because it creates noise pollution. जब ये घूमता है, windmill जब मूव करता है तो it causes noise pollution. Okay, and it is also said that as I told you, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही कॉस्टली होता है ना. इसको इंस्टॉल करना कॉस्टली होता है और इसके कारण कई बार रेडियो और टीवी के जो सिग्नल्स होते हैं वो भी मिलने में दिक्कत होती है, बिकॉज वो वहाँ पर जो हवा चल रही है, इससे जो टरबाइन ये विंडमिल घूम रहा है, तो ये सिग्नल को रिसीव करने में रेडियोज और टीवी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस विंडमिल. देन इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर बर्ड्स, बिकॉज इनका हाइट बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे बर्ड्स उड़ती होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही फेटल हो जाता है ना. तो these are the disadvantages of wind energy. And in our country also we see कि जैसे जो हमारे रीजन्स है, गुजरात में खास करके ये विंड मिल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल किए गए. ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग देखेंगे. दैट इज़ न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, क्योंकि हम ये जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. यहाँ पर हमारे लिए न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. So you will see that these radioactive elements, these are naturally occurring substance जो कि नेचुरली हमें मिलता है. ठीक है. और what are the example of this radioactive element? Uranium, thorium. These are the two examples of radioactive element, uranium and thorium. Okay, और हम क्या देखते हैं कि इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो न्यूक्लियस होती है, इनकी जो एटम्स जो कि सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके एटम में जो उसका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. और इस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. तो इसके लिए क्या होता है कि न्यूक्लियर फिशन किया जाता है. न्यूक्लियर फिशन, दिस इज द टर्म विच इज डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, है ना. न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर पावर के. एक तो आपको ये ठीक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए, यूरेनियम एंड थोरियम. अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आप करेंगे क्या, आपको इसके एटम्स में, ईच एटम में जो न्यूक्लियस है
उसमें जो एनर्जी है उसको आपको ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन होता है? द प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। एंड कैसे ये न्यूक्लियर फिशन कहाँ पे कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही होते हैं, दैट इज़ द वी कैन से कि जो पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं, उसमें जो मेन जो इसका यूनिट होता है दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर इसको हम कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर फिशन किया जाता है किसका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, एटम्स के जो न्यूक्लियस है उससे, है ना। और इससे क्या होता है? पावर एमिट होता है, पावर निकलता है। तो दिस इज़ द वे पावर, न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हमने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया है। इट्स because of development of science and technology we are able to use this nuclear energy। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है अगर आज के समय में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है न्यूक्लियर पावर का वो कौन सी कंट्री में हो रहा है? वो हो रहा है वहाँ पे यूएसए में, है ना, और यूरोप में। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर है यूएसए एंड यूरोप। एंड अगर इंडिया में हम देखें तो हमारे यहाँ राजस्थान और झारखंड ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इज़ फाउंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है न्यूक्लियर पावर का? यूएस एंड यूरोप। दीज आर द टू, यूरोप इज कॉन्टिनेंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कंट्री। तो दीज आर द टू प्लेसेस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ US, है ना, एंड द अदर इज यूरोप। एंड अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है, डिपॉजिट है, नॉट प्रोडक्शन, डिपॉजिट, क्योंकि इट्स अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ना, तो इट्स डिपॉजिट, लार्जेस्ट डिपॉजिट इज फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान। ओके, और थोरियम का भी डिपॉजिट है हमारे कंट्री में। इट इज़ फाउंड इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला में जो मोनोजाइट सैंड्स है वहाँ पर हमें थोरियम मिलता है। ठीक है, मोनोजाइट सैंड्स ऑफ दिस केरला। ओके, एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी बहुत सारे हमारे यहाँ बनाए गए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट हम जिसको कह सकते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कह सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में कलपक्कम है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। देन महाराष्ट्र में तारापुर है। देन कोटा जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर राणा प्रताप सागर है। देन उत्तर प्रदेश का नरोरा, कर्नाटक का कैगा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, है ना। इसको आपको मेमोराइज करना होगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं हमारी कंट्री में। ओके, सो दिस इज़ अबाउट न्यूक्लियर पावर एंड नाउ वी विल सी the advantage and disadvantage of this nuclear power। सबसे जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि जो न्यूक्लियर पावर से जो एनर्जी जो जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बहुत थोड़े से अमाउंट से बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ना।
तो इट emit लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द एडवांटेज। और अगर हम बाकी जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जितनी एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो ये है कि एक्सपेंसिव है रेडियो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्टॉल करना। इट्स रियली हाईली एक्सपेंसिव जॉब, बहुत ही खर्चे वाला ये काम है। और इसके लिए आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्सपेंसिव है। और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें होती है, बिकॉज ऑफ जिस तरह का न्यूक्लियर फिशन होता है रिएक्टर्स में, तो जो वेस्ट यहाँ पर जनरेट होता है दैट वेस्ट इज़ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में फिशन कराया जाता है, तो जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव। तो इस वेस्ट का को आपको जो निपटारा करना होगा बहुत ही केयरफुली करना होगा, क्योंकि इट कैन बी अ हेल्थ हैज़ार्ड। बहुत बड़ा ये कंसर्न हो सकता है पूरे की पूरे देश की जनता के लिए, हेल्थ हैज़ार्ड ये बन सकता है। ऐसा होता है कई बार, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कंट्रीज़ में, तो ये एक इसका सबसे बड़ा हम इसको डिसएडवांटेज कहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो एनर्जी का नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, हम इससे क्या मीन करते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय दिस जियोथर्मल एनर्जी? सबसे पहले आपको ये समझना है कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर हीट होता है, बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के जितने नीचे हम जाएंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जैसे जैसे जाएंगे, एज वी गो डीपर वी विल फाइंड दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जो अर्थ की सरफेस के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, वी कैन यूज दैट हीट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय which is produced through the heat of beneath the surface of the earth is known as geothermal energy, है ना। तो ये अर्थ से ये एनर्जी हम लोग पाते हैं, और इसी के लिए ये जियोथर्मल एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाती है। समटाइम्स this heat energy may surface itself in the form of hot spring. You must have heard about some places where hot spring is there. कहाँ से hot spring? वो naturally जो पानी आ रहा है, कोई गीज़र नहीं लगा हुआ है वहाँ, पानी नेचुरली गर्म होता है। और ये इस तरह के जो पानी होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वो बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। अगर उसमें हम नहा लेते हैं तो बहुत सारे जो डिजीज़ हैं, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, नो, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। ये सही में हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आपने ऐसा सुना होगा कि कई बार ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, है ना, तो ये हॉट स्प्रिंग्स कहाँ से आते हैं? यही जो अर्थ के अंदर जो गर्मी है, वो उस गर्मी से जो वहाँ से जो वाटर निकल रहा होता है, वो उसकी एनर्जी को, हीट को ले लेता है ना। और ये हीट एनर्जी जो है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेट करने के लिए। वी कैन यूज़ दिस हीट एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। और अगर हम देखें तो जियो थर्मल जो एनर्जी है, वो हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ करते आए हैं बहुत पहले से। मतलब ऐसा नहीं, ये भी बहुत अभी की चीज़ नहीं है। जैसे कुकिंग के पर्पज़ से, हीटिंग के पर्पज़ से, बाथिंग, जैसे मैंने अभी बताया, नहाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में जाते हैं। तो फॉर दीज पर्पसेस, कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग, वी आर यूजिंग दिस जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग from ancient time, but we are not using it
for generation of electricity. We have started to use this geothermal energy for generation of this hot spring for generation of geothermal energy in recent times, and that is why it is categorized as a non-conventional source of energy. So we will continue with this discussion in the next class.